Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, our environment, okay? And chapter number 8, human environment interactions, the tropical and subtropical region, okay? And students, today we have to start from page number 57 and this is video second, okay? Video second. So let's start students. So yesterday students we read about life in the Amazon basin climate, okay? So today we will read rain forest, okay? अब हम यहाँ के वर्षा वनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अमेजन बेसिन में वर्षा वन क्या हैं और कैसे होते हैं, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं. Rainforest Varsavan. As it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade tolerant vegetation may grow here. Orchards, bromeliads grow as plant parasites, okay? As it rain heavily in this region, जैसा कि हमने देखा कि इन प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा होती है, थिक फॉरेस्ट ग्रो, और अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर बहुत ज़्यादा वन उग जाते हैं. फिगर 8.3 यू कैन सी हेयर, ओके स्टूडेंट्स. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. Okay, the forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. Okay. वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है. मीन्स कि इतने ज़्यादा नज़दीक पर पेड़ और वन होते हैं कि उनकी जो पत्तियां और जो टहनियां होती हैं वो इतनी क्लोज होती हैं कि इस जगह पर, इन वनों पर पूरी पत्तियों से, टहनियों से छत बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है स्टूडेंट्स वो धरातल पर, ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता. ओके, सो द रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Okay, और जो ज़मीन होती है, यहाँ की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? डार्क एंड डैम्प. ठीक है, मीन्स कि वह नम भरी होती है, एंड डार्क यानी प्रकाश रहित, अंधेरी बनी रहती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाता. तो इस वजह से यहाँ की जो ज़मीन होती वे अंधेरी और नम बनी रहती है. Only shade tolerant vegetation may grow here. Orchards, bromeliads grow as plant parasite. Okay, यहाँ केवल वही वनस्पति ग्रो कर सकती है, वही वनस्पति उगती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो. ठीक है, और स्टूडेंट्स परजीवी पौधे, पैरासाइट्स यानी परजीवी पौधे यहाँ पर जो उगते हैं वे हैं आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा यहाँ पर होते हैं. परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, the rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, figure 8.4 you can see here. Hummingbirds, bird of paradise with their brilliantly colored plumage. Oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds of the forest. Animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here, figure 8.5. Okay, and various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodile, snakes, python abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Beside, the basin is home to thousands of species of insects. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river.
This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. Okay, the rainforest is rich in fauna. ठीक है, अब जो वर्षा वन है यहाँ पर प्राणी जात की प्रचुरता होती है, मतलब प्राणी जात यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राणियों में के मामले में वर्षा वन जो है यह बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, समृद्ध हैं। बर्ड्स सच एज टोकोन्स, फिगर 8.4, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लुमेज। ओके, और स्टूडेंट्स टूकन, गुंजन पक्षी, रंगन प्रकृति वाले पक्षी तथा भोजन के लिए चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रिलियंटली कलर्ड प्लुमेज, ठीक है, मीन्स की रंगीन पक्षती वाले पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, ओवर साइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। तो यहाँ पर जो बड़ी चोंच, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पर वे पाए जाते हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। ओके, और ये जो पक्षी हैं, ये जो बर्ड्स हैं, ये इस वनों में, इन वनों में बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी साउंड यहाँ पर इन वनों में होती है। एनिमल्स लाइक monkey, sloth and ant eating tapirs are found here, figure 8.4. You can see the picture of tapir. Okay, तो प्राणियों में स्टूडेंट्स बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। ओके, वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, ऑलराइट, यहाँ पर स्टूडेंट्स सरीसृपों की विभिन्न प्रजातियाँ और स्नेक्स और सांप ऑल्सो थ्राइव इन दिस जंगल, वे भी इन वनों में पाए जाते हैं। सांप और एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन अबाउंड, एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। ओके, मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर इन वनों में पाई जाती हैं। एंड बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू इंसेक्ट, और इनके अलावा बेसिन इंसेक्ट का घर भी है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में ही निवास करते हैं, यहीं पर उनका निवास है। ओके, सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग species of fishes including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. Okay, इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स हजारों कीड़े मकोड़े तो इस बेसिन में निवास करते ही हैं, और मांस खाने वाली पिरानिया मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में हैं। This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप में समृद्ध है। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रकृति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, ठीक है, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप वाले, ठीक है, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ओके, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ओके, वर्षा वन के निवासी, मीन्स कि वर्षा वन में रहने वाले लोग। ओके,
People grow most of their food in small areas after clearing some trees. Okay, after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. They mainly grow. Okay, people of the rainforest, वर्षा वनों के निवासी. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. Okay, तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं. While men hunt and fish along the river, women take care of the crops. Okay, while जबकि man मतलब पुरुष hunt शिकार करते हैं and fish along of the rivers, women take care of the crops. ठीक है, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदियों में मछली पकड़ते हैं. ठीक है, women take care of the crops. और जबकि जो महिलाएं हैं वे क्या करती हैं, फसलों को की देखभाल करती हैं, फसलें उगाती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, डू यू नो, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट डू यू नो. सो ब्रोमेलाइड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर in their leaves. Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. Okay, तो ब्रोमेलाइड्स जो पौधा है स्टूडेंट्स, ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, जल जमा करता है. और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं. ओके, एंड लेट्स डू सम टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड. ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास. ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर विभिन्न चित्र प्रसारित करते हैं. इन्हें देखें और अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं. ओके, so students, we are reading people of rainforest. Okay, so people grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. Okay, some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. Okay, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं. यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं. और महिलाएं क्या करती हैं, फसलों की देखभाल करती हैं. ठीक है, फसलों का ध्यान रखती हैं. दे मेनली ग्रो, वे मुख्यतया क्या उगाते हैं स्टूडेंट्स, वे मुख्यतया उगाते हैं टैपियोका. ठीक है, वे मुख्यतया टैपियोका उगाते हैं. ठीक है, सो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. ओके, तो वे मुख्यतया क्या उगाते हैं स्टूडेंट्स, अमेजन बेसिन के लोग टैपियोका, अनानास और स्वीट पोटैटो, शकरकंद उगाते हैं. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग दैम द वेजिटेबल्स दे ग्रो. ओके, एज हंटिंग एंड फिशिंग, ठीक है, शिकार करना और मछली पालन. ठीक है, और मछली पकड़ना, शिकार करना और मछली पकड़ना, ये वहाँ अनिश्चित होता है. अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित होना, यह वहाँ पर अनिश्चित होता है. इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग दैम द वेजिटेबल्स दे ग्रो. ओके, और इस प्रकार ऐसे में जो महिलाएं होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे में जो महिलाएं होती हैं, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं. ठीक है, सो दस दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. और वे किस प्रकार की खेती करती हैं, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति. ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्लैश एंड बर्न प्रोसेस क्या है, कर्तन और दहन की पद्धति क्या होती है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हम इसका डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसको हल्का फुल्का आपको बताती हूँ कि इस पद्धति में, यह खेती की ऐसी विधि है जिसमें किसान पहले पेड़ों और झाड़ियों को काट कर क्या करता है, उस जमीन को बिल्कुल साफ कर देता है और फिर जो भी पत्ते वत्ते कट के गिरे रहते हैं उन सबको जला देता है. तो इसमें क्या होता है, पोषक तत्व मिट्टी में ही मिल जाते हैं.
ठीक है, और फिर इस भूमि पर फिर वे कुछ वर्षों तक दूसरी फसल पैदा करता है। ठीक है, तो यही होती है, क्या विधि होती है, हम क्या कहेंगे, दैट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कर्तन एवं, कर्तन मतलब काटना, साफ करना, एवं दहन मतलब जलाना। ठीक है, तो कर्तन एवं दहन की पद्धति से कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो ये लोग कर्तन और दहन की खेती करते हैं। द स्टैपल फूड ऑफ मैनियॉक, ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ का जो स्टैपल फूड है, मीन्स कि मुख्य आहार जो है वो क्या है, मैनियॉक है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, जो आलू की तरह ही जमीन के अंदर पैदा होता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, ठीक है, और वे क्वीन आंट्स यानी चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, और अंडकोश भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मैज एंड कोका आर ऑल्सो ग्रोन, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉफ़ी, मक्का एंड कोको जैसी नकदी फसल भी, ठीक है, नकदी मतलब जिन फसलों से उनको प्रॉफिट होता है, जिन फसलों को बेचकर वे पैसा कमाते हैं, ठीक है, और जिससे उनको बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये जो फसलें हैं वे यहाँ पर उगाई जाती हैं, जैसे कॉफ़ी, मक्का और कोका की। ओके, now next paragraph, the rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched house shaped like beehives. There are other large apartment, okay, there are other large apartment like houses called maloka with a steeply slanting roof. Okay, the rainforest is provide a lot of wood for the houses. वर्षा वन, ठीक है, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। ओके, और सम फैमिलीज लिव इन थैस्ट हाउस सेव्ड लाइक बीहाइव्स, और कुछ घर, बीहाइव्स मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, शेप्ड लाइक बीहाइव्स थैस्ट हाउस, तो कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों के घरों में रहते हैं, छप्पर के घर में रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस कॉल्ड मैलोका विथ अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, जिनकी छत कैसी होती है, तीव्र ढलान वाली होती है। Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. Okay, life of the people of the Amazon basin is slowly changing. तो स्टूडेंट्स, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। इन द ओल्डर डेज, ठीक है, पुराने समय में, ठीक है, इन द ओल्डर डेज, पुराने समय में, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, तो जो वन के अंदर पहुंचने के लिए जो नदी का मार्ग था, कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, तो वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। इन 1970s द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी मार्गों तक, सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. Okay, और अनेकों स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. Okay,
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ता, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। और 1970 में ट्रांस अमेजन, ओके, 1970 में ट्रांस अमेजन में, और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। ओके स्टूडेंट्स, और 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ओके, now next, the development activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implications. The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into a barren landscape. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rains fall, and the lush forest turns into a barren landscape. Okay, the developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का भाग कम होता जा रहा है या लुप्त होता जा रहा है। ओके, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। आप देख सकते हैं कि यह जो वर्षावन के लुप्त होने से जो व्यापक प्रभाव पड़ता है फिगर 8.6 में, ठीक है, वर्षा वनों के डिसअपेयर होने से, लुप्त होने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वाइड एम्प्लीकेशंस होते हैं। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल। ओके, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। ओके, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ओके, एवं सघन वन जो होते हैं, जो घने वन होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बैरन लैंड में यानी बंजर भूमि पर बट जाते हैं, बदल जाते हैं। ओके, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, पहले काफ़ी सघन वन है, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, वर्षा वाले वन है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स देखो लोगों ने अपनी बेसिक नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए वन को साफ करना शुरू किया, काटा, और धीरे धीरे काटते काटते ऐसे हाल हो गए कि यहाँ पर भूमि पूरी बंजर हो गई। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्लैश एंड बर्न मेथड के बारे में, जो कि एक एग्रीकल्चर का क्या है, मेथड है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कर्तन, स्लैश मीन्स कर्तन, काटना, एंड बर्न मीन्स जलाना पद्धति में क्या होता है। स्लैश एंड बर्न इज अ way of cultivating land where farmers clear a pieces of land by slashing or cutting down trees and bushes. These are then burnt, which releases the nutrients into the soil. Now crops are grown in this cleared field for a few years.
कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ओके, तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, वे जलाते हैं। ठीक है, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, so it is abandoned. Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. Okay, तो students, after repeatedly using the patch of land, okay, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से, okay, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। The soil loses its nutrients. Okay, मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। सो इट इज abandoned, इसलिए इन टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। ओके, और उसके बाद वे क्या करते हैं, इस फसल को उगाने के लिए फिर क्या करते हैं, इस टुकड़े को छोड़ देते हैं और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. Okay, और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः क्या बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है, तो कर्तन एवं दहन पद्धति में क्या होता है स्टूडेंट्स, कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान सबसे पहले पेड़ों और झाड़ियों को काटकर जमीन को साफ कर देते हैं, फिर इनको जलाया जाता है और जिसमें पोषक तत्व जलने से मिट्टी में ही मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ज़मीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ओके, so students, today class is over. Tomorrow I will be back tomorrow with other points of this chapter. So till then students, take care, bye bye, be safe, have a nice day.